और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं त्रिवेणी घाट, जहां पर संजय सिन्हा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है। ये वो क्षण जहां सभी की आंखें नम हैं। इस पल का इंतजार लोग सुबह से कर रहे थे जब अंतिम दर्शन हो पाए, और अब शहीद जो हैं वो विलीन हो चुके हैं, अमरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और अब ये अग्नि जो जल रही है वो आक्रोश की अग्नि, लोगों के दिलों में, आंखों में, हर तरफ सिर्फ यही गूंज कि ये बलिदान जाया न जाए, अब आर पार होनी चाहिए। अब किसी शहीद की शहादत के बाद सिर्फ ये नहीं कि कार्रवाई होगी, अब वो कार्रवाई होनी चाहिए। फतुहा के त्रिवेणी घाट पर संजय कुमार सिन्हा को मुखाग्नि दी गई, उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई, जहां पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग स्वतः अपने लाल के दर्शन के लिए जमा हुए थे। और चलिए अब आपको वो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाती हैं जो ओज भर देता है। वायुसेना का वो शक्ति प्रदर्शन इस वक्त जारी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें। On your screens, the bombs have been dropped. Look towards the target now. Number 2 is following his leader into the attack. Bombs away, eyes again to the target. And that's a direct hit. The bunkers are racked by the massive blast waves. Ladies and gentlemen, our airborne warning and control system, or AWACS, has detected an enemy aircraft which is being simulated by a maneuverable, expendable aerial target, which we refer to as MEAT. Our Tejas, armed with air-to-air missiles and bombs in a swing roll, is en route. Watch how the Tejas performs the interceptor role and maneuvers to fire an air-to-air missile. The infrared seeker head of the R-73 missile shall lock onto the heat emitted from the MEAT. The Tejas has swing roll capability. Having fired the missile, this Tejas shall in the same sortie turn around and come back soon to drop bombs on a ground target, thus destroying targets both in air and on ground. The R-73 missile has a proximity fuse. This ensures that even if the missile does not strike the target but passes close to it, the warhead will detonate. The resultant shrapnel slices through vital components, bringing the enemy aircraft down. Ladies and gentlemen, look left. You can see the aircraft. The aircraft has already locked onto the target and prepares to fire. You can now see the MEAT simulating the enemy aircraft overhead in front of us. The missile darts towards the target. The missile passed very close to the target. Unlike an actual aircraft, the target size here was only a few feet, not large enough to trigger the proximity fuse, which would have been the case if it was an actual aircraft. Ladies and gentlemen, the next mission presents the MiG-29 in a new role. This air superiority fighter aircraft is capable of attaining a max airspeed of 2,445 kilometers per hour, which translates into 2.3 Mach. So far, the aircraft has been exclusively used by the Indian Air Force in the air defense role.
The MiG-29 has gained in strength and ferocity after an upgrade, giving the Indian Air Force a much-needed boost. Equipped with the latest avionics and enormously powerful engines, this platform is now a potential game changer in an air-land battle at high altitudes. Today, 2 aircraft shall each launch 2 500 kg bombs to destroy an enemy advanced mounting area simulated by target number 9 in front of us, slightly to the right. Ladies and gentlemen, please look high towards your right. The first aircraft rolling into the dive. There he comes into the steady dive. Bombs away, look in front on your screens. Eyes now to the target. Number 2 following his leader into the attack. He comes from the right. On your screens, the bombs have been released. Eyes towards the target, ladies and gentlemen. Wait for the impact and explosion. There, the enemy is shaken by the tremendous blast. Ladies and gentlemen, our AWACS has now conveyed ground coordinates of a large enemy logistic node to the Tejas, which had just fired the missile. The aircraft shall now demonstrate its swing roll capability by proceeding to engage ground targets in the same mission. The aircraft will now engage large enemy targets on the ground by employing conventional bombs. Ladies and gentlemen, look high, right above your shoulder, as the aircraft dives to engage the enemy logistic area. Each aircraft is armed with 2,000-pound bombs. Bombs gone. You can now visually see the bombs making their way to the target. There, the bombs impact. Look right again as number 2 and 3 follow their leader into the dive. Bombs gone. Number 3 aircraft is the same Tejas which carried out air-to-air interception. Bombs away. Watch the bombs glide towards the target on your screens. Eyes on target now. Vital war supplies have been denied to the enemy. To sustain its armor and mechanized columns, the enemy has established a large fuel storage area close to the battlefield. Our intelligence network has successfully located this area, which is depicted today by target number 11, in front of us, slightly displaced to the left. Such storage areas are generally constructed underground and are suitably hardened. To achieve a kill on such a target, the weapon of choice should be a high explosive penetration weapon, and today the S-24 rocket bomb with a massive high explosive fragmentation warhead of 123 kgs is this weapon of choice, and in effect is almost akin to the bombs that you have been witnessing. Ladies and gentlemen, look left. You shall shortly see the lead aircraft. Look. तो भारतीय सीमा पर वायुसेना के शक्ति प्रदर्शन को आप देख रहे थे, जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। पुलवामा अटैक के बारे में विपक्षी दलों को पूरी जानकारी देने और भारत के अगले कदम के बारे में चर्चा करने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार को विपक्ष का पूरा साथ मिला है। इस बैठक में 3 सूत्रीय प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें साफ कहा गया है कि हम हर रूप में आतंकवाद और सीमा पार से उससे मिल रहे समर्थन की निंदा करते हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सब देश की एकता के लिए सरकार और सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं।
सर्वदलीय बैठक में एक 3 सूत्रीय प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें सभी दलों ने पुलवामा हमले की एक सुर में निंदा की और हमले की प्रतिक्रिया के लिए सरकार के हर फैसले के साथ खड़े होने पर सहमति जताई। महाराष्ट्र के यवतमाल में विकास योजनाओं के शिलान्यास के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पुलवामा के शहीदों को याद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आतंकी संगठनों और आतंक के सरपरस्तों को उनके गुनाह की सजा जरूर दी जाएगी। मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रखें, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। तो पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जांच लगातार की जा रही है। जांच एजेंसियां मौका वारदात पर तमाम तरह की जानकारियां जुटा रही हैं। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और वही इस तरह की घटना न हो, इसे लेकर नई तरह की रणनीति बनाई जा रही है। जांच का दौर शुरू हो गया है, तलाशी का दौर तेज हो गया है, कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और इस वक्त आप यहां पर मौका वारदात पर देख सकते हैं कि अलग अलग एजेंसियों की अलग अलग टीमें यहां पर मौजूद है। डीजीसीआरपीएफ मौजूद है, एनआईए की टीम मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम मौजूद है, इसके अलावा सेना के कुछ नुमाइंदे हैं वो यहां पर मौजूद है, खुफिया टीम जो कि जांच कर रही है। तो अलग अलग एजेंसियां यहां पर मौजूद है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि एनआईए के डीजी है वो शायद यहां पर आए और जहां मौका वारदात का मुआयना करें। तो अलग अलग एजेंसियां यहां पर अपनी जांच कर रही हैं और इससे पहले ड्रोन कैमरों का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। नमूनों को पहले भी सीएफएसएल जांच के लिए भेजा जा चुका है। दोबारा उनको कुछ और जो हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठा कर उनको एक जो उच्च स्तरीय जांच है, हाई लेवल लेबोरेटरी, वहां पर भेजा गया है। तो एक भी चीज यहाँ पर कोई वो नहीं छोड़ना चाहती सुरक्षा एजेंसी और ये सुनिश्चित कर लेना चाहती कि न केवल सबूतों को इकट्ठा किया जाए, न केवल उनकी जांच पुख्ता तरीके से हो, न केवल इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जाए, बल्कि आने वाले दिनों में इस नए तरीके के खतरे के लिए कैसे हम निपटे, ये इनकी मुख्य वजह है, इनकी मुख्य प्रायोरिटी है और इस पर ये काम कर रही है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ अमित पांडे, पुलवामा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद को बुलाकर सख्त राजनीतिक विरोध दर्ज कराया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद में तैनात भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया को तलब किया। पाक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि पुलवामा हमले में भारत पाकिस्तान पर आधारहीन आरोप लगा रहा है। तो
पुलवामा हमले के बाद अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी भारत के साथ खड़े होकर कहा है कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। जॉन बोल्टन ने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल को इस आतंकी हमले के बाद फोन कर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद का सामना करने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा है।